Our today's topic is TCA cycle. Today we will study about the reactions of TCA cycle, what is the significance of TCA cycle, and how the TCA cycle is regulated. TCA cycle is also known as, it has other names. TCA cycle is also known as tricarboxylic acid cycle. Why it is known as tricarboxylic acid cycle? Because of the presence of the molecules that contains the three carboxyl groups. Because of the citrate and isocitrate. This cycle is known as tricarboxylic acid cycle because of the presence of the citrate and isocitrate, because it contains three carboxylic acid, 1, 2 and 3. Okay, three carboxyl group hai, that's why tri, and 1, 2 and 3. So because of the citrate and isocitrate, this cycle is known as tricarboxylic acid cycle. This cycle is also known as citric acid cycle. Why citric acid cycle? Because of the presence of this citrate, because the first product in this whole reaction is the citrate. So because of the citrate, this cycle is also known as citric acid cycle, and this cycle is also known as Krebs cycle. Why Krebs cycle? Because these reactions and this cycle was discovered first time by the scientist known as Hans Krebs. So because of the Hans Krebs, the name the scientist name is also given to this cycle. So this cycle is also known as Krebs cycle because of the scientist Hans Krebs, who first put these reactions into the cycle form, who discovered this cycle. So that's why this cycle is also known as Krebs cycle. So in Krebs cycle, basically what happens in Krebs cycle, the acetyl-CoA is passed through a series of reactions, and as a result, two molecules of carbon dioxide is released. Okay, acetyl-CoA is converted into is completely oxidized into two molecules of carbon dioxide, and there is a generation of 3 NADH and 1 FADH2 and 1 GTP. So 3 NADH production and 1 NADH2 and 1 GTP. So this production from one Krebs cycle. So where does the Krebs cycle take place? The Krebs cycle takes place inside the mitochondria. In the metabolism of carbohydrates, as we previously studied, there is a glucose molecule, जिसकी glycolysis होती है. Glucose molecule is completely broken down into pyruvate. Then this glycolysis takes place in the cytoplasm. Then pyruvate is converted into acetyl, is transported inside this mitochondrial membrane, inside the mitochondria, converted into the acetyl-CoA, and then acetyl-CoA enters into the Krebs cycle. राइट और जो क्रेब्स साइकिल में जो उसके उसमें NADH एंड FADH2 जो रिलीज होते हैं, दैट इंटर्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP की जनरेशन होती है. व्हाई क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ एंजाइम जो है इसके मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं. Now this is the Krebs cycle. In the Krebs cycle there is a series of reactions. हम इसको 10 जो पूरा का पूरा साइकिल है उसके reactions को हम 10 reactions में divide करते हैं, और इस cycle में जो है आपके पास जो enzymes involved होते हैं, there are 8 enzymes: the citrate synthase, acantase, isocitrate dehydrogenase, alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, succinate dehydrogenase, fumarase, malate एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. ये सारे जो है आपके पास एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयर इज ऑलमोस्ट 10 स्टेप रिएक्शन आपके पास जो है ये दिस क्रेब्स साइकिल में भी आपके पास होता है. और इसमें जो है आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी जनरेशन होती है, वो कौन कौन से स्टेप पे होती है और कहाँ कहाँ होती है, हम हर एक रिएक्शन को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं. Before going into the reactions of the citric acid cycle, let's have a look on the mnemonics of the citric acid cycle. There is a mnemonic that you can easily learn these the products, the reactant products of this Krebs cycle. आपके पास है, can I keep selling sweets for money, officer? Can I keep selling sweets for money, officer? So can is a citrate, C. Okay, so can I
keep selling sweets for money officer. ठीक है, तो साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, राइट. सो आप ये निमोनिया का आपको पता होगा, then you can easily recall the substrates and products of the reaction for the TCA cycle. That can I keep selling sweets for money officer, that's the citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinate, succinyl CoA, succinate, fumarate, malate and oxaloacetate, right. Okay, so let's study in detail about each reaction. रिएक्शन नंबर वन में क्या होता है कि ऑक्सैलोएसीटेट, जैसे आपको बताया कि ऑक्सैलोएसीटेट reacts with the acetyl CoA. Acetyl CoA is a 2-carbon molecule, right? That has to be completely oxidized through this cycle into 2-carbon. This 2-carbon skeleton has to be eliminated in the form of carbon dioxide from this entire Krebs cycle. Okay, so oxaloacetate जो कि cycle में पहले से present है, it has, ये आपके पास क्या होगा, सबसे पहले condensation होगा, oxaloacetate will react with the acetyl CoA and will form the citric acid. Enzyme जो यहाँ पे act करेगा, that will be the citrate synthetase. In the presence of the citrate synthetase, मतलब citrate synthetase means formation. So इसमें क्या होगा कि citric acid की formation होगी, या you can say that citrate की formation होगी, उसमें जो enzyme act करेगा, that will be the synthetase. So oxaloacetate, a 4-carbon molecule, ठीक है, 4-carbon molecule है, it will react with the acetyl CoA, the 2-carbon molecule, together 4 and 2 आपके पास क्या बनाएगा, 6-carbon molecule आपके पास बनाएगा, and that's the citric acid, right. तो एज अ रिजल्ट एसिटाइल को ए जो है, इसमें आपके पास जो को ए इसका पार्ट है, कोएंजाइम ए, दैट विल बी रिमूव. ठीक है, यहाँ से को ए जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड देन ऑक्सलोएसीटेट टुगेदर विद एसिटाइल को फॉर्म द सिट्रिक एसिड एंड द एंजाइम एक्ट विल बी द साइट्रेट सिंथेसिस. दिस इज द फर्स्ट एंजाइम दैट विल एक्ट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, Krebs cycle. देन नेक्स्ट आगे क्या होगा, द सिट्रिक एसिड जो है आगे फिर कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट, इज कन्वर्टेड इनटू द आइसोसाइट्रेट, लेकिन उससे पहले इसके 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं उसमें. ठीक है, सिट्रिक एसिड बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द आइसोसाइट्रेट 2 रिएक्शन से गुजरता है. 2 बेसिकली 2 और 3 इसको अलग अलग किया हुआ है, लेकिन इसको एक भी कंसिडर किया जा सकता है. पहले डिहाइड्रेशन होती है एंड देन रिहाइड्रेशन होती है. द साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट, बट बिफोर दैट उसमें आपके पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक डिहाइड्रेशन होता है, दूसरा क्या होता है, हाइड्रेशन होता है. मींस पहले वाटर की रिमूवल होती है, वाटर की एलिमिनेशन होती है सिट्रिक एसिड से, एंड देन वापस से वाटर की एडिशन होती है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट. इन दिस रिएक्शन द एंजाइम, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम अकेंटेज. अकेंटेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, पहले सिट्रिक एसिड में वाटर की यहाँ से वाटर की रिमूवल होती है, डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, राइट. यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है क्या है, सिट्रिक एसिड इज आल्सो 6-carbon मॉलिक्यूल. ठीक है, इसकी आपके पास क्या होती है, उसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, आपके पास जो है वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो अकेंटेज विल एक्ट, सिट्रिक एसिड जो है आपके पास सिस अकेंटेज की फॉर्मेशन करेगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. देन अगेन अकेंटेज जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ अकेंटेज एंजाइम, वाटर मॉलिक्यूल की वापस से रीएडिशन होगी, उसकी स्ट्रक्चर जो उसकी है कन्फर्मेशन या उसकी जो रीफॉर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर जो है वापस से चेंज होगा, एंड देन विद द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इस अकेंटेज आपके पास फाइनली क्या बनाएगा, आइसोसाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अकेंटेज. नाउ आइसोसाइट्रेट जो है आगे से फिर आइसोसाइट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट. दिस इज द रिएक्शन. ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पे क्या होती है कि एनर्जी आपके पास जनरेट होती है इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ NADH. इसमें क्या होता है कि NADH की प्रोडक्शन होती है, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है आपके पास क्या है, डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा, दैट एंजाइम विल बी द डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा, जो क्या करेगा, आइसोसाइट्रेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, NAD विल गेट रिड्यूस्ड. इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड देन NAD विल गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द NADH. ठीक है, यहाँ पे एक जो क्रेब्स साइकिल में 3 NADH की प्रोडक्शन होती है, तो एक NADH की जो प्रोडक्शन है वो इस रिएक्शन में होती है.
राइट. सो आइसोसाइट्रेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिजल्ट क्या होगा कि NAD विल बी रिड्यूस इनटू NADH. सो एंजाइम चेक करेगा, बिल्कुल ऐसे होगा. आइसोसाइट्रेट आइसोसाइट्रेट की क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेज. सो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इज going to cause the dehydrogenation of the isocitrate. ठीक है, and that hydrogen will be captured by the NAD and NAD will be converted into the NADH. राइट. सो इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सैलोसिटेट की सॉरी ऑक्सैलोसक्सिनेट की जो है वो प्रोडक्शन होती है. राइट. तो ऑक्सैलोसक्सिनेट ये भी आपके पास, जैसे आपको बताया कि पीछे जो सिट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में, लेकिन उसमें के बीच में क्या होता है, दो रिएक्शंस होते हैं. पहले रिमूवल ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, देन इट इज फॉलोड बाय हाइड्रेशन. ठीक है. तो इसी तरह से जब आइसोसाइट्रेट जो है बेसिकली आपके पास आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, लेकिन आइसोसाइट्रेट जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में तो इसमें भी दो तरह की रिएक्शंस होते हैं. एंजाइम एक ही है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज ही है, लेकिन दो तरह के आपको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको समझाने के लिए बताया हुआ है कि दो रिएक्शन से उसमें क्या होता है कि आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज में पहले डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होता है एंड देन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. दो रिएक्शन होते हैं, एक डिहाइड्रोजनेशन होता है और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन होता है. ठीक है. तो जब इसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है तो आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में एंड देन ऑक्सैलोसक्सिनेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट. ठीक है. तो ऑक्सैलोसक्सिनेट व्हेन कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट रिजल्ट क्या होता है, एक कार्बन स्केलेटन जो है रिमूव हो जाता है. ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि वहां से आ रहा है जब एसिटाइल को ए साइट्रेट के सॉरी ऑक्सैलोसिटेट के साथ कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बनाया. ठीक है. सिट्रिक एसिड वो भी 6 था. देन आपके पास जो है वो आइसोसाइट्रेट 6 मॉलिक्यूल है, दिस इज 6 मॉलिक्यूल, दिस इज 6. तो यहाँ से आपके पास क्या होगी, एक कार्बन स्केलेटन जो है उसका रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओनली वन कार्बन इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपके पास जो है ऑक्सैलोसक्सिनेट इज आपके पास बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्म में. नाउ एक कार्बन रिमूव हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट में आपके पास कितने कार्बन स्केलेटन बच गए, यस 5. ठीक है. तो इसमें आपके पास जो है दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट इज अ 5 कार्बन containing molecule. ठीक है. And the one carbon is released in the form of carbon dioxide in the presence of the enzyme isocitrate dehydrogenase. ठीक है. So basically this is the conversion of the isocitrate into alpha ketoglutarate, but it is divided into two. ठीक है. दो रिएक्शन में डिवाइड किया गया है. तो एक डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है जिसमें NADH की फॉर्मेशन होती है एंड दूसरा जो है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है. तो फाइनली आपके पास क्या आता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, द 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. ठीक है. जो अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन होती है, दिस इज द 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट is again passed through other dehydrogenation reaction. ठीक है. एक और रिएक्शन में एंटर होता है एंड उसमें आपके पास क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल को ए. ठीक है. अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होता है. एक और जो आपको बताया था कि NADH की प्रोडक्शन होती है वो इस रिएक्शन में होती है. द एंजाइम विल एक्ट एज द नेम इंडिकेट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज. इट मींस दैट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज इसकी क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेशन करेगा. यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा और दैट हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय द NAD and will be converted into the NADH, right? So the CoA that were removed in the first reaction, जो एसिटाइल को ए से रिमूव हुआ था जब एसिटाइल को ए रिएक्ट हुआ था ऑक्सैलोसिटेट के साथ और उसने साइट्रेट की फॉर्मेशन की थी, तो वो जो को ए है इट विल बी रीयूटिलाइज इन दिस स्टेप. ठीक है. तो उसकी जो है अटैचमेंट होगी एंड इट विल फॉर्म दी सक्सिनाइल को ए. ठीक है. को ए जो आपके पास वहां से फर्स्ट रिएक्शन में जो रिमूव होता है दैट विल बी टेकन अप बाय दिस रिएक्शन. ठीक है. और वहां पे वापस से को ए की अटैचमेंट होगी एंड इट विल फॉर्म दी सक्सिनाइल को ए. और यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है कि एक और जो है रिएक्शन यहाँ पे एक और कार्बन की जो एलिमिनेशन होती है वो इस स्टेप में होती है. राइट. एक और कार्बन यहाँ पे रिमूव हो जाता है. सो सक्सिनाइल जो है इट इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. ठीक है. इसमें जो है आपके पास कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं. यह एक और कार्बन की जो एलिमिनेशन होती है वो आपके पास यहाँ पे होती है. ये जो एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस एंजाइम is basically known as alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Alpha ketoglutarate dehydrogenase is a complex enzyme
which is also same as pyruvate dehydrogenase complex, जो कि इंटरमीडिएट प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पायरुवेट, जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है स्टाइल को ए में, तो वहाँ पे पायरुवेट dehydrogenase complex एंजाइम यूज होता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटारेट dehydrogenase एंड पायरुवेट dehydrogenase जो है ये सेम होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, सिर्फ ये कि ये यहाँ पे यूज हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट dehydrogenase इस रिएक्शन में यूज हो रहा है, और वो जो है पायरुवेट dehydrogenase complex पायरुवेट की कन्वर्जन करता है एसिटाइल को ए में। तो इसके जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज हैं, इसमें 5 विटामिन यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? दैट्स थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, एफएडी एंड एनएडी। ठीक है, ये 5 मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, लिपोमाइड भी कहते हैं उसको, कोएंजाइम ए, एफएडी एंड एनएडी। तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज है, इसका जो पूरा इसके एंजाइम का पूरा मैकेनिज्म, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, E1, E2 एंड E3। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो इनको जो है हम सेपरेट एक अलग से लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, बिकॉज दिस एंजाइम हैज वेरी मच क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इनको इसके पूरे मैकेनिज्म को वी विल स्टडी इन डिटेल इन द सेपरेट लेक्चर। सो सक्सिनाइल को ए की फॉर्मेशन होती है। सो सक्सिनाइल को ए इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से आगे क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन मॉलिक्यूल थ्रू आउट जो है ऑक्सैलोएसिटेट तक आपके पास ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल ही रहेगा, क्योंकि इससे आगे आपके पास जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन नहीं होगा। बस 2 डिकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन होते हैं क्रेब्स साइकिल में, जो कि आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, एक आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन इस स्टेप में होता है, और एक आपके पास जो है जब आइसोसाइट्रेट की कन्वर्जन होती है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो एक वहां पे कार्बन की एलिमिनेशन होती है। सो इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट। Succinyl CoA 4 carbon containing molecule is converted into the succinate 4 carbon containing molecule, and the enzyme act will be the succinyl CoA synthetase. So in this reaction this CoA is again removed. ठीक है, CoA वापस से जो आपके पास यहाँ से remove हो जाता है, and this is the only reaction in this Krebs cycle जिसमें आपके पास क्या होती है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, जिसमें डायरेक्ट एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो जीडीपी यहाँ पे रिक्वायर होता है। जीडीपी सबसे पहले, जीडीपी इन द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज कैप्चर्ड बाय द जीडीपी, एंड दैट जो इसका रिएक्शन करवाता है फॉस्फेट के साथ। ठीक है, जीडीपी विल बी रिएक्टेड विद फॉस्फेट, इट विल फॉर्म द जीटीपी। ठीक है, 2 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट ये आ गया, एंड देन जो है इट विल फॉर्म दी guanine ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी कैप्चर्ड बाय दिस रिएक्शन। एंड देन जीटीपी जो है अगेन दिस इट विल बी टेकन अप बाय द एडीपी, एंड एडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी। तो डायरेक्ट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, डायरेक्टली जो है वो एक एटीपी फ्रॉम ईच क्रेब्स साइकिल जो है वो आपके पास इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस सक्सिनेट 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमेरेट। ठीक है, so succinate fumarate the enzyme will be the succinate dehydrogenase. It means that the succinate dehydrogenase क्या करेगा, इस succinate की dehydrogenation करेगा। The hydrogen will be removed from the succinate and will be taken up by the FAD, and the FAD will be reduced into the FADH. राइट, एफएडी जो आपके पास FADH2 की में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस आल्सो द अदर रिएक्शन जिसमें आपके पास क्या होता है कि एनर्जी इनडायरेक्टली रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ FADH2. So FADH2 1 FADH2 will be formed in each Krebs cycle. ठीक है, एक FADH2 जो है आपके पास इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है उसकी, and this FADH2 will go to the electron transport chain for the synthesis of the ATP. Now fumarate in the next reaction, again it's the hydration reaction which requires the presence of the water molecule. The fumarate is converted into the malate, and it requires the presence of the water. Okay, the presence of the water molecule, fumarate is converted into the malate with the help of the enzyme fumarase. Okay, fumarase एक करेगा जो कि fumarate को convert करेगा malate में. It requires the presence of the water. After that, there is the final reaction in which there is the regeneration of the oxaloacetate. Now the malate will be converted into the oxaloacetate.
एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है इस रिएक्शन में क्या होता है आपके पास रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि वहां से सक्सिनेट से आगे आपके पास क्या होता है, सक्सिनाइल से आगे 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, आगे कंटिन्यू आपके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल ही चलेगा, एंड देन ऑक्सैलोएसिटेट इज आल्सो अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। नाउ देयर इज अ रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट, as a result आपके पास जो enzyme act करता है that's the malate dehydrogenase, so dehydrogenase means that it's going to cause dehydrogenation of the malate, and as a result dehydrogenation होगी इसकी, ठीक है, oxidation होगी, and as a result जो reduce होगा that will be the NAD, and the NAD will be reduced into the NADH, and the enzyme act will be the malate dehydrogenase, right. So malate is converted to oxaloacetate. Now oxaloacetate आपके पास regenerate हो गया, now oxaloacetate is now free. Now it will again react with other acetyl CoA जो आपके पास बाकी जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, acetyl CoA की प्रोडक्शन होगी, acetyl CoA आएगा, and then it will again, it is regenerated and it will again react with acetyl CoA, and then आपके पास जो है पूरा आगे से again जो है the cycle will continue, ठीक है, साइकिल जो है फिर से आपके पास होगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन जिसमें NADH की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तीसरा जो NADH की प्रोडक्शन होती है वो आपके पास इस 10th रिएक्शन में जो है उसकी जनरेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है ना, देन दिस एंड दिस NADH विल गो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP। So this whole 10 reactions, ठीक है, हर एक को हमने डिटेल में पढ़ा। नाउ दिस होल 10 reactions जो है आपके पास यहाँ पे जो है उसको समराइज किया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको निमोनिक्स बताए थे तो उस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। कैन आई कीप सेलिंग स्वीट्स फॉर मनी ऑफिसर, राइट। सो साइट्रेट सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एसिटाइल को ए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट द 4 कार्बन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 एंड एसिटाइल को ए the 2 carbon molecule, ठीक है, it will react as acetyl CoA, it will react with the oxaloacetate and form the citrate, ठीक है, 6 carbon molecule citrate की formation करेगा, this is the 6 carbon molecule, ठीक है, जो enzyme है citrate synthase है, then citrate is converted into the isocitrate, ठीक है, जो enzyme करेगा that will be the अकंटेज, इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक कैसे किसलिए कहते हैं, बिकॉज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। देन आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट, दिस इज द स्टेप जहां पे क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द 5 कार्बन मॉलिक्यूल, और एक कार्बन कहाँ गया, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द एंजाइम जो करता है दैट्स द आइसोसाइट्रेट डी हाइड्रोजनेज, जो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड दैट विल बी कैप्चर्ड बाय द NAD, and NAD will be converted into the NADH, right. Then the next reaction, this carbon molecule 5 carbon molecule is converted into the 4 carbon molecule, okay, other carbon is removed in the form of carbon dioxide, then alpha ketoglutarate is converted into the succinyl CoA, and the enzyme act here is the alpha ketoglutarate dehydrogenase, so it means that dehydrogenation का reaction होगा, so NAD will be converted into the NADH, ठीक है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक क्रेब्स साइकिल से, तो 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो इसलिए 2 एंड 2 आपके पास कितने 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज होंगे। तो यहाँ पे जो एसिटाइल को ए था 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसकी कंप्लीटली क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। एक क्रेब्स साइकिल में क्यों इंटर होता है, उसकी कैटाबोलिज्म के लिए, ठीक है, उसकी कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए यहाँ से एसिटाइल को ए इसकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस 4 कार्बन मॉलिक्यूल आगे थ्रू आउट द रिएक्शन जो है आपके पास ऑक्सैलोएसिटेट तक ये आपके पास 4 कार्बन ही रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। नाउ दिस सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट, दिस इज द अदर रिएक्शन जहाँ पे आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, GTP की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, GDP is converted into the GTP and the enzyme act here is the succinyl CoA synthetase. Then the other reaction, succinate is converted into the fumarate with the help of the enzyme succinate dehydrogenase, ठीक है, dehydrogenation का process होता है, FAD जो है वो convert होता है FADH2 में। Other reaction में fumarase act करता है जो कि fumarate को convert करता है malate में, and this reaction also requires the presence of the water molecule, ठीक है। एंड देन अदर रिएक्शन जिसमें फिर से आपके पास डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होता है, द 4 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू 4, ठीक है, आपके पास मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट में, इन दिस रिएक्शन द ऑक्सैलोएसिटेट इज रीजनरेटेड, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट की वापस से रीजनरेशन होती है, द एंजाइम एक्ट करता है दैट्स द मेलेट डिहाइड्रोजनेज।
तो डिहाइड्रोजनेशन के जो स्क्रेप साइकिल में जो रिएक्शन होते हैं वो 3 जगह पे होते हैं। एक डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे करता है, एक डिहाइड्रोजनेज जो है वो आपके पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, मतलब 4 आपके पास होते हैं। तो 3 NADH की प्रोडक्शन होती है, 1 2 एंड 3 NADH, और एक FADH2 की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जो आपके पास एक NADH जो है वो 2.5 ATP की प्रोडक्शन करते हैं। सो 2.5 2.5 5 एंड 2.5 7.5 की प्रोडक्शन करते हैं। 3 NADH मॉलिक्यूल जो हैं वो 7.5 ATP की प्रोडक्शन करते हैं, एंड दिस वन एक FADH2 जो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आता है वहां पे 1.5 ATP की सिंथेसिस होती है। तो 7.5 एंड 1.5 टुगेदर इट गिव्स द 9 ATP फॉर्मेशन, और एक आपके पास डायरेक्ट जो है ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो 9 + 1 10। सो इस एक पूरे क्रेब्स साइकिल से आपके पास जो एनर्जी की जनरेशन होती है वो कितनी होती है? दैट्स दी 10 ATP प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल? जो TCA साइकिल हमने सारा पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये कि TCA साइकिल जो है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट आपने देखा कि वो आपके पास कितनी ATP की प्रोडक्शन करते हैं, कि एक आपके पास जो एक क्रेब्स साइकिल होता है उसमें से 10 ATP की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक तो आपके पास ATP की प्रोडक्शन हो रही है, दूसरा आपके पास जो है क्या होता है, उसके और भी सारे फंक्शन है। दिस सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो है, एक तो पायरुवेट की जो है आपके पास कंप्लीट उसकी क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन भी होती है, ब्रेकडाउन होती है। उसके अलावा जो है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंस तो उसका ये हो गया, ठीक है, कि ATP की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। दूसरा ये हो गया कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और जो अमाइनो एसिड्स हैं उन सब की क्या होती है इसमें मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, वो इसमें क्रेब्स साइकिल में इंटर होते हैं और उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो उसके अलावा जो है, ये तो आपके पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस, मतलब मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस आ गए, कि उसमें क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, कि कार्बोहाइड्रेट पायरुवेट जो है वो इंटर होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड की भी ब्रेकडाउन होती है, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, उसके जो है कार्बन स्केलेटन रिमूव होते हैं और उसकी क्या होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है। लेकिन जो TCA साइकिल है, इसको हम कहते हैं कि इट हैज दी बोथ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम एम्फीबॉलिक भी कहते हैं। इट हैज दी बोथ दी प्रॉपर्टीज। एम्फीबॉलिक, इसमें कैटाबोलिक रिएक्शंस भी होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारा था दैट वाज रिलेटेड टू द कैटाबोलिज्म। ठीक है, जिसमें आपके पास सारी की सारी ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा कैटाबोलिज्म के अलावा इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? कि इट कैन लीड टू द ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैटी एसिड की सिंथेसिस भी कर सकते हैं, ट्रांसअमाइनेशन की रिएक्शंस भी इसमें होते हैं, और पोरफायरिन मतलब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो हाउ ग्लूकोन्यूजेनेसिस, हाउ दिस TCA साइकिल इज इन्वॉल्व इन द ग्लूकोन्यूजेनेसिस? सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस, जैसे आपको भी मैंने बताया कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में कैसे इन्वॉल्व है, दिस ऑक्सैलोएसीटेट, जो आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट है, ये इस ऑक्सैलोएसीटेट ये आपके पास क्या कहता है कि इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो दिस ऑक्सैलोएसीटेट इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉम साइट्रेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। इसमें से कुछ रिएक्शन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो इंटर हो सकते हैं, और वहां से आपके पास क्या हो सकता है कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस जो है बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं दे कैन आल्सो बी इन्वॉल्व इन द ग्लूकोन्यूजेनेसिस फॉर्मेशन। उसके अलावा है फैटी एसिड सिंथेसिस। मैंने आपको बताया हाउ दिस क्रेब्स साइकिल इज इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस में कैसे इन्वॉल्व है कि एसिटाइल, for the synthesis of fatty acid this acetyl CoA is required. ठीक है, acetyl CoA is required for the fatty acid synthesis, but this acetyl CoA, as this reaction occurs inside the mitochondria, तो mitochondrial membrane is impermeable to the acetyl CoA. acetyl CoA जो है वो mitochondria से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि it will be converted into the citrate
एंड देन साइट्रेट जो है वो आपके पास उसकी जो है ट्रांसपोर्ट होगी माइटोकॉन्ड्रिया से, वो बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, एंड देन साइटोप्लाज्म में अगेन जो है वो आपके पास साइट्रेट इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सैलोएसिटेट एंड एसिटाइल को ए, और फिर वापस एसिटाइल की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, एंड देन एसिटाइल को ए जो है वो आपके पास वहां पे इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड की सिंथेसिस में फिर यूटिलाइज होता है। तो ये आपके पास एनाबॉलिक का प्रोसेस आ गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ग्लूकोजेनिक बताया कि इसमें आपके पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं आपके पास इन ग्लूकोजेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, वो फिर आपके पास जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा आपको बताया कि पोरफायरिन सिंथेसिस होती है, पोरफायरिन सिंथेसिस में जो है वो सेक्सिनाइल को ए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेक्सिनाइल को ए जो है वो क्या करता है कि सेक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन इट इज इन्वॉल्वड इन द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है, फिर वहां पे हीम की फॉर्मेशन करते हैं, हीम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द अदर फोर्थ मैंने आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं कि जो पायरुवेट है, ठीक है, जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, ठीक है, द पायरुवेट इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल को ए, तो ये वाला रिएक्शन जो है आपके पास क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, राइट। तो पायरुवेट जो है वो कहाँ से आता है बेसिकली, तो पायरुवेट दैट कम फ्रॉम द एलेनिन, ठीक है, एलिनीन जो है वो उसकी कन्वर्जन होती है पायरुवेट में, वो ट्रांसमाइनेशन के थ्रू होती है। उसके अलावा जो ऑक्सैलोएसिटेट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, इसकी भी ट्रांसमाइनेशन होती है, एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एस्पार्टेट की एंट्री हो सकती है, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट यहाँ से निकल के एस्पार्टेट जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो हमने 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े थे उसकी फॉर्मेशन होती है। ऑक्सैलोएसिटेट इस साइकिल से निकल के अमाइनो एसिड जो है एस्पार्टेट उसकी सिंथेसिस कर सकता है। उसके अलावा जो एस्पार्टेट है वो भी आपके पास क्या कर सकता है कि अमाइनो एसिड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोजेनिक होता है, तो एस्पार्टेट आपके पास ग्लूकोजेनिक एस्पार्टेट से ऑक्सैलोएसिटेट भी बन सकता है, और ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो अगेन आपके पास क्या कर सकता है कि उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। इसी तरह से एस्पार्टेट जो है वो ऑक्सैलोएसिटेट आपके पास जो है वो एस्पार्टेट में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन लीव दिस साइकिल एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कर सकता है इफ देयर इज नीड फॉर द अमाइनो एसिड। उसके अलावा जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है, इसकी भी आपके पास क्या होती है ट्रांसअमाइनेशन होती है किस चीज में, ग्लूटामेट में भी आपके पास क्या होता है कि ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है उसको देख लेते हैं कि आपके पास ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में होता क्या है। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में दीज आर, ये जो आपके पास सारे हैं ये क्या है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसमें आपके पास क्या है कीटो ग्रुप अटैच है। तो अमाइनो एसिड जैसे उसमें क्या होंगे, अमाइनो एसिड अटैच होंगे। These are the transamination reaction in which there will be the formation of aspartate, ठीक है, जिसमें एस्पार्टेट की फॉर्मेशन हो रही है कहाँ से, ऑक्सैलोएसिटेट से, ठीक है, जैसे आपको बताया कि ऑक्सैलोएसिटेट होता है उससे क्या बनेगा, एस्पार्टेट बनेगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि ऑक्सैलोएसिटेट आपके पास क्या है जिसमें कीटो ग्रुप अटैच है, जब अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर होगी इसमें, ठीक है, व्हेन द अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू दिस ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है, तो एक्सैलोएसिटेट जो है इसकी आपके पास कन्वर्जन हो जाएगी किस चीज में, एस्पार्टेट में। अब यहाँ पे क्या है, पहले कीटो ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या अटैच है, नाउ अब इसमें क्या होगा, अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। सो दिस ऑक्सैलोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, एन एस्पार्टेट इज एन अमाइनो एसिड। इसी तरह से एक और एग्जांपल है पायरुवेट की, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द पायरुवेट। पायरुवेट जो है ये भी आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास क्या है कीटो ग्रुप अटैच है, एंड देन व्हेन द अमाइनो ग्रुप विल ट्रांसफर टू द पायरुवेट, देन पायरुवेट की कन्वर्जन होती है किस चीज में, एलेनिन में, ठीक है, वो एलेनिन में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटारेट की एग्जांपल है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट है, कीटो ग्रुप अटैच है, व्हेन द अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू इट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से आपके पास क्या बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा, ठीक है। और ये जो ग्लूटामेट है, दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट बाय द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के अमाइनो ग्रुप की जब इसमें ट्रांसफर होगी, ठीक है, ग्लूटामेट बनेगा। दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करेगा, देन ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो एसिड है, अगर वो नर्वस टिश्यूज में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, तो वहाँ पे वो गाबा और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसकी फॉर्मेशन उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। सो दिस इज हाउ द Krebs साइकिल एक्ट्स एज बोथ एम्फीबॉलिक, इसको हम कहते हैं कि जिसमें आपके पास क्या होता है, कैटाबोलिज्म भी हो रही होती है और साथ साथ क्या होती है, एनाबोलिज्म भी हो रही होती है। इसकी एग्जांपल ऐसी होती है कि जैसे कि एक मेन हाईवे है और उसमें से क्या होती है कि बाकी जो है वो रोड्स उसमें से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब एक मेन हाईवे है और उसमें से जो है वो साइड वेज में क्या हो रही है, रोड्स जो है वो वहां से निकल रही हैं, जिसमें से ट्रैफिक जो है वो निकल भी सकती है और आ भी सकती है। ठीक है, जहाँ से ट्रैफिक जा भी सकती है और आ भी सकती है। ठीक है, जैसे जा सकती है वैसे आपके पास जो है वहां से इंटर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से जो है एलिमिट उसकी एनाबोलिज्म के प्रोसेस में यूज भी होगा। तो व्हेन एक और टर्मिनोलॉजी होती है, देयर इज अनदर थिंग इन द Krebs, जो सिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं एनाबोलिज्म के, ठीक है, यहाँ से इंटरमीडिएट्स निकलते जाएंगे, उसकी एनाबोलिज्म होगी, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है कि इसका जो अपना जो Krebs साइकिल है, इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि Krebs साइकिल जो है वो इफेक्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, इट कैन लीड टू द स्टॉपेज ऑफ दिस Krebs साइकिल। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि इसकी जो है स्टॉपेज को रोका जाए, उसके इंटरमीडिएट्स को कम होने से रोका जाए। तो इसको कहते हैं हम एनाफ्लोरोसिस और एनाफ्लोरोटिक रिएक्शंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर एनाफ्लोरोसिस होती है, एनाफ्लोरोटिक रिएक्शन होता है। जो रिएक्शंस उसमें क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो आपके पास रिप्लेनिश मतलब रीफिल करते हैं इंटरमीडिएट्स को, जो आपके पास एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में, जो वैसे तो कैटाबोलिज्म हो रही होती है, लेकिन एज अ केस ऑफ कैटाबोलिज्म जब एनाबॉलिक रिएक्शंस में उसमें से इंटरमीडिएट्स निकल रहे हैं और वो बाकी जो है सिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे हैं, फैटी एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं और पोरफायरिन की सिंथेसिस कर रहे हैं, ट्रांसअमाइनेशन रेट, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इट कैन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो उसके इंटरमीडिएट्स कम हो सकते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए क्या होते हैं, फिर एनाफ्लोरोटिक रिएक्शंस होते हैं। तो एनाफ्लोरोटिक रिएक्शंस आपके पास क्या होते हैं, एनाफ्लोरोटिक रिएक्शंस में डिफरेंट फिर रिएक्शंस होते हैं और उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट क्या करेगा कि पायरुवेट ऑक्सैलोसिटेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगेन then this pyruvate is converted into oxaloacetate with the help of the enzyme pyruvate carboxylase, और इस क्या करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट को जो है वो उसकी इंटरमीडिएट्स को कंप्लीट करेगा। अदर आपके पास जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको दिखाया कि ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में एंड देन उसके इंटरमीडिएट्स को कंप्लीट करेगा। इसी तरह से जो पायरुवेट है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मेलिक एंजाइम मेलेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ से उसकी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वापस से भी उसको क्या किया जाता है, फिल अप किया जाता है। ठीक है, जो अल्टरनेटिव पाथवेज, जो पाथवेज होते हैं जो क्या करते हैं उसको फिल करते हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज एनाफ्लोरोटिक रिएक्शंस। We studied about the Krebs cycle. Okay, what is Krebs cycle होता क्या है, then the reactions of Krebs cycle in detail, the energetics, the energy production or regulation involved in the Krebs cycle. ठीक है, energy production के बारे में पढ़ा। Then we have studied about the significance of citric acid cycle, then amphibolic property of citric acid cycle, and then the other reaction that is related to the citric acid cycle, that is fill up reaction. Okay, so that's all about. If you have any questions, you are free to ask.